এই মন্দিরটা হচ্ছে বাগুইআটি অর্জুনপুরে মানে প্রতিষ্ঠিত গোরখনাথজির মন্দির, গোরখনাথ আশ্রম। এই মন্দিরটায় প্রচলিত কথা অনুযায়ী গোরখনাথজি যখন নাথ ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে, তখন তিনি পার্শ্ববর্তী সরস্বতী নদীর তীর ধরে এসে এখানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এই মঠটা চলছে, এখানে নাথ যোগী সম্প্রদায়ের যিনি মহন্ত থাকেন তিনি চালাচ্ছেন, বর্তমানে যোগী বিজয়নাথজি মহারাজ আছেন। জায়গাটা অনেক প্রাচীন জায়গা, প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরটা 1891 সালে ব্রিটিশের ডেলি অ্যান্ড লন্ডন ব্যাংক বলে একটা ব্যাংক ছিল, সেই ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ রাখা ছিল। সেই প্রপার্টিটা ব্রিটিশের ডেলি অ্যান্ড লন্ডন ব্যাংকের অকশন থেকে একজন মাহেশ্বরী মারোয়ারি কমিউনিটির লোক বংশীধর কারনানি তিনি 1893 সালে পারচেস করেন। 1891 সালে পারচেস করেন। 1891 পারচেস করার পর তিনি একটা ট্রাস্ট তৈরি করেন, গোরখনাথ ঠাকুরজি এস্টেট ট্রাস্ট। আগে জমিদারি ছিল, পরবর্তী সময় সেই ট্রাস্ট এখন এই মন্দিরটা 1893 সাল থেকে চালিয়ে আসছে। খুবই জরাজীর্ণ দশা, ঠিকমতো জিনিসটাকে ম্যানেজ করা হচ্ছে না। এই ট্রাস্টটার যে শর্ত ছিল, সেই শর্তটা হচ্ছে যে উনি যেটা বানিয়েছিলেন 5 জন মাহেশ্বরী মারোয়ারি কমিউনিটির লোককে দিয়ে, সেই মাহেশ্বরী মারোয়ারি কমিউনিটির লোকই এখানে রয়েছেন। এখানে বাঙালি কেউ নেই, হ্যাঁ, অবাঙালি মানুষজন কিছু রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে হয়তো মহারাজজির কোনো কমিউনিকেশন গ্যাপ রয়েছে, যে কারণে হয়তো জিনিসটা ঠিকমতো হচ্ছে না। এবার এখানে পরবর্তীতে ট্রাস্ট যদি চেঞ্জও হয়, সেক্ষেত্রে ওই তার স্থলে মানে আগে যিনি ছিলেন তার পরিবর্তে ওই মাহেশ্বরী মারোয়ারি কমিউনিটিরই কোনো লোক আসবেন। হ্যাঁ, আমি উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথজি এখন মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, ওনার গুরুদেব ছিলেন অবৈদ্যনাথজি মহারাজ। আমি অবৈদ্যনাথজি মহারাজের শিষ্য। আমি দীর্ঘদিন ধরে, আমার বাবা এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীতে আমি বাবার হাত ধরেই এখানে আসা, এবং তারপরে এই মন্দিরগুলো কি করে ডেভেলপ করা যায়, এবং মহারাজজি আসেন, আমি ওনার আত্মসহায়কের কাজ করি যতটুকু সম্ভব ওনাকে অ্যাসিস্ট করবার জন্য। কারণ যোগী বিজয়নাথজি মহারাজ এখন এখানে মহন্ত রূপে রয়েছেন। উনি অবাঙালি মানুষ, পাঞ্জাব পাটিয়ালায় ওনার গুরুস্থান, উনি ওখানেই থাকেন এবং সঙ্গে এটার দায়িত্ব ওনার রয়েছে। ओम शिव गोरक्षनाथाय नमो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव देव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने भी प्राचीन ऐतिहासिक धर्म के क्षेत्र हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, उनके बारे आप बड़ी बारीकी से और बड़ी आस्था पूर्वक से जाकर उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। होना भी चाहिए। धर्म स्थल की जितनी भी प्राचीन ऐतिहासिक जगह है उनके बारे जानकारी देना, जानकारी खुद को हासिल करना एक महत्वपूर्ण है। नंबर 2 कि ये जो आज हम बैठे हैं श्री सिद्ध कपिल मुनि धाम श्री गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पीठाधीश्वर, ये सिर मत्था है कपिलानी पंथ का। सिर मत्थे का अर्थ होता है भी जहां से संप्रदाय प्रारंभ हुआ हो। संप्रदाय के साथ साथ नाथ संप्रदाय में 12 पंथ हैं। 12 पंथों में हर पंथ का सिर मत्था है। जैसे ये कपिलानी सिर मत्था है, कहीं सतनाथ का सिर मत्था है, कहीं रामकों का सिर मत्था है, कहीं धर्मनाथ का सिर मत्था है। तो ये हम गोरखनाथ मंदिर सिरमत्था कपिल मुनि श्री सिद्ध नाथ जी का आश्रम में बैठे हैं। ये आपने पूछा है कि ये कब से है और कितना पुराना है, इसका क्या इतिहास है। ये हमारे नाथ संप्रदाय में तो इसको बड़ा आदि अनादि से माना जाता है, क्योंकि भगवान कपिल मुनि जी यहाँ श्री गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने थे। ये धूना कर दें 10,000 साल पुराना है। जो सुनने में आया, जो हमारे गुरु पीरों महंतों और पुराने संतों से उन्होंने आगे से आगे सुना है कि ये बहुत प्राचीन इतिहास है। यहाँ भगवान कपिल मुनि जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बने थे। अब ये घटना है इस स्थान से, यहाँ 4 गांवों का इस स्थान को राजा भी माना जाता है, क्योंकि जो यहाँ मूर्ति है ना, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सिर्फ बंगाल कोलकाता में
अर्जुनपुर में बागुहाटी थाने में श्री गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर की मूर्ति मूंछों वाली मूर्ति है, और कहीं भी आपको भारतवर्ष में गोरखनाथ जी मूंछों वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ माता काली को गुरु गोरखनाथ जी ने राजा रूप दिखाया था। माता काली से भी गुरु गोरखनाथ जी का सुनने में कथाओं के आधार पे सुना है कि युद्ध हुआ है। बाकी संतों से या हम लोग देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने भी कुछ लिखा हुआ है कि माता काली से गुरु गोरखनाथ जी का युद्ध हुआ था, क्योंकि वो साधुओं को, राक्षसों का तो नाश करते करते उन्होंने कुछ साधुओं का भी ऐसा हुआ, तो यहाँ गुरु गोरखनाथ जी को मक्खी बना लिया। तो ये तो होगी एक राजा रूप की इनकी प्रिया, तो जो मक्खी बना लिया था। तो फिर उनको जब वो बोलने लगे भी मेरे को यहाँ से निकालो, तो कहना बोलो किस द्वार से निकालो, कहना जिस द्वार से आपने मेरे को घुसाया है उसी से मेरे को बाहर निकालो। तो मुख्य द्वार से बाहर निकाला था। फिर वो कहते भाई अब पता लगा कौन है कि मैं राजा हूँ, तो राजा है तो राजा वाला रूप दिखा। फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी ने यहाँ पर राजा का रूप दिखाया था, जिसमें कि वो मूर्ति साक्षात ऐसे ही थे मूंछों वाले। कपिल मुनि भगवान जी जब राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म किए थे, उस उपरांत उनके शरीर में चंडेर, हम लोग इंग्लिश में चिकन बॉक्स बोल सकते हैं, ललाट पैदा हो गई थी। तो फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, भगवान मेरे शरीर में ऐसी ललाट हो रही है, ऐसी चंडेर चढ़ रही है कि किसकी उपासना से मेरा कल्याण होगा। तो भगवान शिव ने कहा था भाई तू आंख की दृष्टि, मुख की दृष्टि बंद करके ना कानों की दृष्टि से सुन के देख, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ उस समय गुरु गोरखनाथ जी बंसरी बजा रहे थे। तो वो बंसरी बजाते बजाते बहुत समय से बंसरी बज रही थी यहाँ। तो वो उनकी धुन के अंदर वहाँ देख लो गंगा सागर कहाँ है, कल्याणी बन कहाँ है, वहां से चलते चलते यहाँ पहुंच गए थे। जब देखा गुरु गोरखनाथ जी ने भी यहाँ गोरखनाथ जी बंसरी बजा रहे हैं, तो वो एकदम बंसरी बंद कर दी। तो गुरु गोरखनाथ जी को बंसरी बंद करने पर उन्होंने बोला महाराज जी मेरी तो सारी चंडेर, सारी ललाहट अंदर पैदा हो रही थी, ज्वाला सब आपकी सुंदर धवनी ने सब मेरे को मंत्रमुग्ध कर दिया, मेरे को तो मेरा कल्याण हो गया, आप बंद क्यों कर दी? कहना जो तुम कार्य के लिए आए वो तुम्हारा कार्य आरंभ हो गया। फिर यही गुरु गोरखनाथ जी ने उनको भभूति का तिलक लगा के उनकी चोटी काट के अपना शिष्य बनाकर नाथ संप्रदाय में 84 सिद्धों में भगवान कपिल मुनि जी सिद्धनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। 1893 में ये जो इतनी जगह है ना, ये गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही है, गोरखवंशी एरिया के नाम है। तो उस जमाने में अंग्रेजों ने इस जगह को नीलाम करना चाहा। उस समय बंशीधर कोरनानी नाम के एक माहेश्वरी परिवार ने उनसे अपने 4 मित्रों को लेकर इस जगह को खरीद लिया था 3100 रुपये में। वो खरीदने के उपरांत, क्योंकि पहले जमाने में जो संत थे, आज से 150 साल पहले की बात है, 128 साल हो गए, उस जमाने में फक्कर साधु होते थे, 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, अपना चल दिए, धुने पर ही खा लिया, धुने पर बना लिया, जाना ही नहीं कहीं, दम पानी पिया, अपना चल दिए, दम पानी पिया, चल दिए, ना जमीन की, ना जायदाद की, ना प्रॉपर्टी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे मतलब फक्कर उस सृष्टि के बनाए हुए नियमों के आधार पर चलते थे, जैसे भगवान ने चलन बनाया था, उसी प्रकार सिद्ध लोग हुआ करते थे। कोई मतलब कि ये नहीं है कि आज के जमाने में हर फैसिलिटी साधु को भी चाहिए, गृहस्थी को भी चाहिए, पर उस जमाने में साधु कुछ अलग स्टाइल के होते थे। और आज का जमाना है, अगर साधु पढ़ा लिखा ना हो तो उसकी अपनी जितनी भी जगह है वो सब दुनिया हड़प लेगी, लोग हड़प लेंगे। धर्म अधर्मी कितने प्रकार की मतलब के विषयों की गति चल रही है कि मतलब के कोई नहीं सोचता भी हम हिंदू होने के उपरांत भी हिंदू को ही मार रहे हैं। कहने को तो हिंदू है, महेश्वरी भी हिंदू है, पर ये जगह किसकी है? ये भी सनातन
गोरक्षनाथ जी, गो इंद्रियों के रक्षक को गोरखनाथ जी कहा जाता है। अपने शरीर में गो इंद्रियां हैं, सब गोरखनाथ जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो जब वो गोरक्ष इंद्रियों की रक्षा कर रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, और सनातन ही गोरखनाथ जी को देख लो आज किस स्थिति में ले आया। जो ट्रस्टी लोग हैं, उस समय तो वो अच्छे थे, बंशीधर कुरनानी नाम के जितने भी थे महेश्वरी परिवार से, वो उस समय अच्छे थे। लेकिन आज उनके जाने के बाद, क्योंकि व्यक्ति ने एक न एक दिन तो शरीर छोड़ना है, ये तो भगवान के कर्मों के, हमारे जो कर्म है उसके अनुसार भगवान ने हमें यहाँ जीवन दिया है। इस जीवन से कितना कृतार्थ करना है, कितना नष्ट करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। कर्म पात्र है ना, कर्म प्रधान है जीवन का। तो उस माध्यम से देखा जाए तो वो जमाने में तो अच्छी सोच थी उनकी, उन्होंने इसको बचाया। लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद जो नई पनीरी आएगी, नए अंकुर फूट गए, उनके मन में क्या षड्यंत्र होया, क्या रचना हुई, कैसे कैसे मतलब के मंदिर की व्यवस्था को नहीं देखा, ट्रस्ट में अपना हिस्सा ले रहे हैं। और ट्रस्ट का जो नाम है, गुरु गोरखनाथ जी के ठाकुर ट्रस्ट के नाम से जगह जगह वो कार्यक्रम करके फंड भी ले रहे हैं। वो मंदिर की स्थिति ऐसी की ऐसी है। यहाँ नहीं गोरखनाथ जी के पास कुछ आया, गोरखनाथ जी के नाम से बहुत कुछ ले लिया। कहने को तो कहना पड़ेगा, क्योंकि जो कहने वाली बात है। तो आज अगर हमारे अपने जो गुरु गोरखनाथ जी की पर्सनल प्रॉपर्टी है यहाँ पर जितने भी, अगर वो स्वयं महंत के पास होए और महंत उसका जीर्णोद्धार करना चाहे, और उसको मतलब संतों के कृपा से, सिद्धों की कृपा से, गुरु पीरों की कृपा से इसकी डेवलपमेंट करे, यहाँ भंडारे हों, संतों का आवागमन हो। हर संत चाहता है, हर महात्मा चाहता है, हर साधु चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे जकड़बंद लगा रखे हैं, कहीं ट्रस्ट है, कहीं सरकार ने कब्जा किया हुआ है। ये दिशाओं के बीच में अब क्या डेवलपमेंट करें? तो ट्रस्टियों को सोचना चाहिए भी मंदिर का तो हमने कभी कुछ बनाने, जैसा है वैसा का वैसा ही है। ट्रस्ट भी कहला रहे हैं और मंदिर का कोई कल्याण भी नहीं हो रहा। सनातन धर्म की बात जब आती है तो हम लोग गहरा क्यों नहीं सोचते, कल का क्यों नहीं सोच रहे हम लोग? आज भारत की परिस्थिति, भारत की स्थिति ऐसी हो रही है कि चलो वो देश तो वो भी हमारा ही था कभी किसी जमाने में, और यहीं से आना जाना भी है सनातन का। सनातन भी है बांग्लादेश में, ऐसी बात नहीं, बहुत हिंदू माइंडेड व्यक्ति भी हैं। तो सनातन का अर्थ क्या है बे? जो आदि अनादि से जिस संस्था की, जिस धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और धर्म सनातन के साथ साथ ऐसा है कि जो धार्मिक व्यक्ति है, जो नित्य कर्मी कर्मकांडी है, उसके साथ मतलब के भारतवर्ष में भी आज ठीक नहीं हो रहा। रीजन, कारण है कि जो इंसान क्रिटिकल प्रेशर में आके सनातन को भूल रहे हैं। सनातन का सनातन ही बैरी हो रहा है, हिंदू का हिंदू बैरी हो रहा है। हमें मुस्लिम मोमडम से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, और वो ना हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। हमारे होके हमें गिरा रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, और हमारी रक्षा करने की बजाय हमारे भक्षक बन गए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं भी खत्म नहीं करी बात, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ वो गुमराह रास्तों पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बदलेंगे, वो गुमराह रास्तों पर भी हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो कंधे से कंधा लगा के भी खड़े हैं। मैं सबको नहीं कह सकता, क्योंकि 5 उंगली भगवान ने हमें दी है, पांचों एक सार नहीं है। लेकिन गुमराही, लालच, लोभ, स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं वो टच हैं, हमको नहीं पता लग रहा है। तो हमारे भाई, चलो हम तो प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान परमपिता परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, तो कि अपने घर वापस आ जाएं और स्वीकार कर ले।